عمران خان جو سب سے اہم خبر ہے وہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں, عمران خان صاحب کے 2 کیسز جن کے اندر وہ جیل کے اندر بند ہے, ان دونوں کیسز کی اپیلیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے جا رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بڑے لمبے عرصے سے, یعنی سال سے زیادہ ہو گیا, عمران خان صاحب اور ان کے وکلا کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگیں. عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسز بالکل ٹھہرنے کے قابل ہی نہیں ہے, اور اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کسی بھی جگہ پہ یہ کیسز جاتے ہیں تو یہ اڑ جائیں گے. عمران خان صاحب ان کیسز میں رہائی پا لیں گے. اب یہ دونوں کیسز لگ گئے ہیں اور ایک ہی دن لگ گئے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی 9 کیسز میں ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. 7 یا 8 کیسز تھے غالباً, ایک بشرا بی بی کا بھی تھا. تو عمران خان صاحب کی ایک اور عدالت سے جو لوور کورٹ ہے, وہاں پہ 9 مختلف کیسز کے اندر یا 8 مختلف کیسز کے اندر ضمانتیں منظور ہوئی ہیں, جس میں 9 مئی کا بھی تھا, اس کے اندر کیس تھا آزادی مارچ والا بھی, اس کے اندر دیگر کچھ اور کیسز تھے. تو ڈیفرنٹ ٹائم کے حوالے سے عمران خان صاحب کے, اور جعلی رسیدیں بنانے کا ایک کیس تھا. تو یہ سارے کیسز میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی پہلے ضمانتیں ہو چکی ہیں. اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے 2 کیسز, جن میں ایک کیس, یہ الگ الگ عدالتیں, ایک کیس صبح 9 بجے ابھی لگا ہوا ہے جسٹس خادم حسین سومرو صاحب کے سامنے, توشہ خانہ والے کیس کی اپیل, اور اسی کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں. اور دوسرا کیس جس میں وہ گرفتار ہیں یا قید کاٹ رہے ہیں وہ القادر کیس کی اپیل ہے, اور یہ دونوں لگے ہوئے ہیں. اس میں جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان, یہ ڈویژن بینچ ہے جو یہ کیس سنے گا. تو ایک کیس لگ رہا ہے 9 بجے اور ایک کیس لگ رہا ہے 11:30 بجے. اگر ان دونوں میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب قیدی نہیں رہیں گے, پھر وہ آزاد ہو جائیں گے, وہ باہر آ جائیں گے. اور کیا ان کی ضمانت ہو جائے گی ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ یہ ججز کنٹرول ہوتے ہیں کہیں اور سے. اگر میں انصاف اور قانون کی بات کروں تو عمران خان صاحب کی آج ہی ضمانتیں ہو جانی چاہیے. آج نہیں ہو جائیں تو 1 ہفتے کے اندر اندر ان کی ضمانتیں ہو جانی چاہیے, اور انہیں پھر اپنے گھر چلے جانا چاہیے آزاد ہو کر. پھر وہ اپنا علاج کروائیں, اپنی پالیٹکس کریں. لیکن یہاں جو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ عدالتیں کنٹرول میں ہیں ایجنسیوں کے, اور ایجنسیاں جو فیصلہ کریں گی اس کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں. اگر انصاف اور قانون کے مطابق ہوں تو یہ کیس لگتے ہی بہت پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جاتے. اب امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ کسی دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئے اور وہ یہ گند مارنا بند کر دے اور ججوں کے اوپر دباؤ ڈالنا بند کر دے, تو پھر میرٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. اور اگر ان 2 کیسز میں عمران خان صاحب کی فرض کریں آپ ضمانت ہو جاتی ہے یا انہیں رہا کر دیا جاتا ہے, تو پھر کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکتا ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ, وہ کتنا دباؤ محسوس کر رہی ہے. دیکھیں 3 طرح کے دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. ایک بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں, جس وقت عمران خان صاحب کی یہ آنکھ کا مسئلہ اٹھا تھا نا, تو اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت خوف پھیل گیا تھا, وہ بہت پریشان تھے, اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے. انہیں لگتا تھا کہ پاکستان اچانک بنگلہ دیش بن جائے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب انہوں نے رابطہ کیا تو تحریک انصاف کو بیوقوف بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کی فیملی بھی اب کہہ رہی ہے کہ انہیں چکر دیا گیا ہے. حالانکہ وہ شفقت ایوان صاحب جو گرفتار ہو گئے تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف لوگ تھے, بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباد وغیرہ, تو ان لوگوں کو جو ہے وہ چکر دے دیا محسن نقوی وغیرہ نے, اور پھر ٹائم بائے کر لیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی تحریک کھڑی نہیں کر پائے, اور وہ ایک مومنٹم جو بن سکتا تھا احتجاج کا, وہ کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان میں, تو اس کے بعد پھر انہوں نے چیزیں نارملائز کر دی. اتنی نارملائز کر دی کہ بڑے آرام سے ایک دن رات کو عمران خان صاحب کو اسپتال لے کر آئے, لا کر عمران خان صاحب کا جو آنکھ کا ٹریٹمنٹ کروایا, ان کے باقی ٹیسٹ کیے اور وہاں سے لے کر چلے گئے. اب دباؤ ایک تو پبلک کا ہے کہ کسی وقت بھی پبلک اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک دباؤ رہے گا, اور دباؤ یہ بھی ہے کہ عوام میں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یا پاکستان کی فوج میں بطور ادارہ عوام کے ساتھ ایک دوری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے, اور وہ جو ایک تعلق تھا وہ کمزور پڑ رہا ہے. تو ایک تو یہ بہت دباؤ ہے. دوسرا, پاکستان چل ہی نہیں رہا, اس بات کا بڑا دباؤ ہے. پھر باہر سے بھی پاکستان پہ لگاتار دباؤ آ رہا ہے. یہاں برطانیہ کے اندر 5-6 جو اراکین ہیں ان کی پارلیمان کے اندر ان کی یہ مسئلہ اٹھایا گیا, اور وہاں ہاؤس کے اندر اس کے اوپر تقاریر ہوئی, باقاعدہ ان کے منسٹر نے بات کی, باقی لوگوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں, بلکہ جرنیلوں کے اوپر پابندیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اس کے باوجود ٹریڈ کرتے ہیں
पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीजों पे नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पे बहुत तनकीद की गई। और वहां पे ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, और तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है। उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार है और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई, उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया और ये बड़ी अजीब चीज है जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत-ए-हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है, जहां मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है, जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियां बनाए गए। लम्हों में ISI ने मीडिया को वीडियो बयानात भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियो आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वजीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और IGP वहां पे मौजूद थे और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियोस ISI कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फौजी क़यादत के कहने पर ISI ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो ISI ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम टीवी चैनल पे प्रोग्राम में बयानिए के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवा दिया गया इमरान खान साहब के, ताकि हेलीकॉप्टर गिर जाए और इमरान खान साहब उस वाकये में मारे जाएं, और रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आ सकी। 18 मार्च को डेथ ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को मारने के लिए। जब वो भी नाकाम हो गया तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। उसके अलावा कई कोशिशें और की गई हैं। 3 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और मुसलसल उनकी सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। अस्करी खबरें चलवाने वाला मीडिया ये क्यों भूल जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम बेटे इमरान खान की जिंदगी से खेलने में हिस्सादार बन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, इमरान खान साहब ने जेल में आसिम ला और ज़ैनी मरीज का जिक्र किया तो आसिम मुनीर ने सबके सामने कहा कि आसिम ला है तो है। अच्छा, ये बात वैसे और भी सर्कल से मैंने सुनी है। अब बताता हूं आसिम ला और ज़ैनी मरीज क्या होता है। इसी गुस्से में डी चौक में खून रेजी की गई और इकबाल जुर्म करते हुए ये भी कहा गया कि संगजानी से आगे मत बढ़ो, सरशाही बंद करें, करप्शन बंद करें, 2 नंबरियां बंद करें। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे लाके असेंबली में बैठा देती है, जिनके जरिए से वो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, वो बंदे बैठाना बंद कर दें। अपने कठपुतली उठा लेते हैं, को किस शहर से, को किस शहर से, को किस शहर से, उनको लाके बैठा देते हैं। और वो बंदे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, बजाय इसके कि अवाम के लिए काम करें। जैसे कि मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिम मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे। और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मेरी इमरान। मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीम लगारी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूं और खड़ा हूं अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को ये मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाए। अब ये बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन ये हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती हो उस पे पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि वर्कर मुस्तैल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसी नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो सामने आगे खड़ा हो जाता है। बुजदार वाले फैसले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुजदार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तजहीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार ओ भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जहां हुकूमत है वहां तो कोई चज की जगह के ऊपर जलसा कर ले। जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था। लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर आवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने। लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए, तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी, ताकि क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की, लोग गुस्सा होना शुरू हो गए और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए। तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है। अब वो गलती से भी ये फजलुर रहमान साहब को चैलेंज ना कर दें आजकल के दौर में, हो सकता है कल कोई ठीक हो जाए, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा काम कर दे, पब्लिक की पल्स के ऊपर हाथ रख दे, एस्टेब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की बात को वजन दे गंडापुर साहब, तो ये इज्जत वापस भी आ सकती है। जैसे मैं नवाज शरीफ को कहता होता हूं कि मियां साहब, आज आप एस्टेब्लिशमेंट का जूता छोड़ दें और आप इकतदार की सियासत करें इकतदार के बजाय, तो मियां साहब आपकी इज्जत बहाल हो सकती है। आप 3 दफा इस मुल्क के वजीर आज़म रहे, आपका ये अंजाम अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह गंडापुर साहब अगर चाहे और पब्लिक की तरफ आकर खड़े हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की बजाय, तो एकदम से सूरत हाल बदल जाएगी। अब इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिफ मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी। साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने 1-2 और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया, और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होके दावत दे रहे हैं कि यार ये मसला हमारा हल कर दें। ये इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल हो रहा है। सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने इस पे जो है वो अभी चीजें सामने आ जाएंगी। इस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाया दूं, एक्चुअली उनके साथ हुए सवाल जवाब। अच्छा, इन्होंने जेल के बाद बताया, देखिए खान साहब ने हदायत दी है कि आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग में जाकर बात करूंगा, और खान साहब बिल्कुल वाजे हैं कि पाकिस्तान की कौम अपना फैसला कर चुकी है और कौम कायदीन जो है पार्टी के, उनसे आगे निकल चुकी है। तो पार्टी के कायदीन को अब सोचना होगा कि उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कौम आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सारे। अब तुम लोग सोचो कि तुमने कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है तुमने, क्योंकि कौम तो आगे निकल गई है। और ये पार्टी के हर लीडर के लिए ये बात है, और जो मुआजिज जितने भी रहनुमा है पार्टी के, उन सब के लिए है। खान साहब बड़े वाजे हैं
اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ قوم کے ساتھ تحریک انصاف کو کھڑا ہونا ہوگا۔ صحافی نے پوچھا کہ جلسہ ہوا، اس پہ خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جلسے کے انتظامی معاملات میں وہی بدبو والا معاملہ، کچڑے والا معاملہ، اس کے اوپر خان صاحب نے شکایات تھی، خان صاحب تک مکمل بات شاید براہ راست نہیں پہنچی تھی، لیکن اس پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جلسے میں جو جوتے وغیرہ دکھائے گئے، ان پر بانی پی ٹی اے برہم نہیں ہوئے، یہ پوچھا تو دیکھیں اگر کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے تو اسی تناظر میں خان صاحب نے کہا کہ ہمیں قوم کی نبض سمجھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہا خان صاحب نے کہ لوگوں نے غلط کیا، انہوں نے قوم کی نبض سمجھنی چاہیے، اگر قوم آگے نکل گئی تو ہمیں قوم کا ساتھ دینا ہے، ہم قوم سے پیچھے نہیں رہ سکتے، یہ عمران خان صاحب نے جیل میں کہا۔ پھر ایک اور سوال کیا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب